لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ہر قسم کی بڑائی کبریائی و حمد و ثنا صلی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی صافی کوثر شاخ معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، معزز اور محترم خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسلام دین رحمت ہے اور اسلام کس طریقے سے دنیا میں امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور اسلام کو ایک غلط چیز سے جوڑنے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو جو باتیں کہی جائیں اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور جن کا تعلق عمل سے ہو اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ان جیسے عناوین کو اختیار کرنے کی جو بنیادی طور پر ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ ہے اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پر ہمارے اپنے ملک وطن عزیز ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلق سے جو ظلم و ستم کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یوں تمام پوری دنیا اور تمام عالمی طاقتوں نے اسلام کے خلاف جو محاذ کھڑا کر رکھا ہے اور اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جو مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو، عبادت گاہیں، مقدس مقامات، مساجد اور مدارس یہ غیر محفوظ ہیں.
जबकि इससे पहले हमारे अपने मुल्क वतन अजीज़ में ऐसा कभी माहौल नहीं था। आज हमारे अपने मुल्क में मुसलमानों का खून अगर आप देखेंगे तो ये पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। आए दिन रोज़ाना कहीं आप देखेंगे क्या नौजवान, क्या मर्द, क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बूढ़े, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। सरेआम एक भीड़ इकट्ठा होती है और इनको मौत के घाट उतार देती है। इस मुल्क में कब किसकी जान चली जाए और कब किस पर हमला कर दिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसके दुकान और मकान को निशाना बना दिया जाए और कब चलते हुए इंसान को कब्रिस्तान के हवाले कर दिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो एक पहलू पर मैंने बात की है कि मुसलमानों को जिस तरीके से मश्क सितम बनाया जा रहा है ये एक पहलू है। और दूसरा ये है कि पूरी मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया की तमाम आलमी ताकतें, आदाए इस्लाम हो, दुश्मनाने इस्लाम हो, ये इस्लाम को इन्होंने आतंक से जोड़ने की कोशिश की है। मुसलमान को दहशत से जोड़ने की एक नापाक कोशिश की है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि इस्लाम एक आतंक की तालीम देता है। नऊज़ बिल्लाह, हजार बार नऊज़ बिल्लाह। मुसलमान ये दहशत को पसंद करता है और दहशतगर्द होता है ये। और पूरी इस्लामी तालीमात, पूरा कुरान, अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात ये दहशत से भरी हुई है। नऊज़ बिल्लाह, हजार बार नऊज़ बिल्लाह। इस्लामी जामियात है, इस्लामी मदारिस है, जहाँ इस्लाम की कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, पूरे दहशत की तालीम देते हैं। नऊज़ बिल्लाह। एक ऐसा पूरा माहौल बनाया गया। मैं इंशाअल्लाह वो पस मंज़र में आपके सामने बात करूँगा। सबसे पहली बात मैं आपको आज के खुतबे जुमा के हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ पर इस्लाम होगा वहाँ अमन होगा। सुभान अल्लाह। एक सच्चा मुसलमान कभी भी दहशतगर्द हो नहीं सकता है और ना कभी दहशत को पसंद करता है। सुभान अल्लाह। जहाँ इस्लाम होगा वहाँ अमन होगा, वहाँ सलामती होगी। और एक मुसलमान जहाँ रहेगा, सुभान अल्लाह, वहाँ अमन और सलामती की दावत देने वाला होगा। इस्लाम और दहशत ज़मीन और आसमान की दूरी है जनाब। ये दोनों कभी इकट्ठा हो नहीं सकते, दोनों कभी जमा हो नहीं सकते हैं। और एक सच्चा मुसलमान हमेशा, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में अमन और सलामती की दावत देने वाला होता है। मैं इस हवाले से कुछ बातें रखूँगा और अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो वाक़यात आप कह लें, वो आपके सामने पेश करके एक ऐलान पर अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। इस्लाम का माना क्या है? इस्लाम का माना ही अमन और सलामती है। सलामती की दावत देने वाला, अमन का दावत देने वाला। यही वजह है हमारे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले, गुफ्तगू करने से पहले, बातचीत करने से पहले अस्सलामु अलैकुम कहे। और अस्सलामु अलैकुम का माना क्या है? मेरे भाई, मेरी जानिब से आप बेफिक्र रहें, आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई मुसीबत नहीं, मेरी जानिब से आप अमन और सलामती में रहें। सुभान अल्लाह। इस्लाम ये मोहब्बत, अखुवत, भाईचारगी और बाहिमी प्यार, बाहिमी उल्फत और इंसानियत की तालीम देने वाला और अदल व इंसाफ का पैगाम देने वाला है। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया जानती है, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में रुए ज़मीन पर आए, अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बना करके मबूस किया। पूरी दुनिया की हालत क्या थी? अल्लाह की कसम है, जुल्म और सितम की कार्रवाइयाँ, अदल व इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। पूरी दुनिया जलालत और गुमराही में पड़ी हुई थी और हर तरफ बदअमनी का दौरा था, शर व फसाद था। बेटियां हो, बड़े हो या बूढ़े हो, शहरी लोग हो, कोई भी महफूज नहीं था। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन का पैगंबर और अमन का दाई बना करके भेजा। आखिरी नबी, आखिरी रसूल, रहमतुल लिल आलमीन बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस किया। कुर्बान जाएं, 23 साला मुद्दत में
اللہ کے نبی محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में ऐसा अमन कायम किया, ऐसी सलामती कायम की कि रहती दुनिया तक कोई आदमी ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता है। और उससे बड़ी बात आप देखें, हमारा जो दीन है ना इस्लाम, इसको नाजिल करने वाले कौन, भेजने वाले कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तमाम मुसलमानों के रब हैं, खालिक हैं, मालिक हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला के जो अस्माए हुस्ना हैं, अल्लाह के जो नाम हैं, आप पढ़ेंगे अल्लाह के नामों में एक नाम है अस्सलाम। क्या नाम है? अस्सलाम। अल्लाह के नामों में एक नाम अस्सलाम है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए हुस्ना में, अल्लाह के प्यारे नामों में एक नाम अस्सलाम है। और अस्सलाम का माना क्या है? सलामती देने वाला, पूरी दुनिया को अमन व सलामती में रखने वाला। सुबहान अल्लाह, पूरी दुनिया में अमन व सलामती पैदा करने वाला ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है मेरे भाइयों। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत में मोमिनों के लिए जो घर तैयार कर रखा है, जिसको हम जन्नत कहते हैं ना, जन्नत के कई नाम है सुभान अल्लाह। उन नामों में एक नाम दारुस्सलाम है। क्या नाम है? दारुस्सलाम है। सुभान अल्लाह। दारुस्सलाम का माना क्या है? सलामती का घर है। अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत में मोमिनों के लिए जो घर तैयार कर रखा है, उसका नाम दारुस्सलाम, सलामती का घर। वहाँ पर कोई शर नहीं, वहाँ कोई फसाद नहीं, वहाँ कोई लड़ाइयाँ नहीं। मोमिन वहाँ ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारेंगे। सुभान अल्लाह। और मैं अपनी बात में जल्दी करूँ, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम पाक में कई नबियों की दुआओं को नकल किया है। एक मशहूर नबी है, मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा, एक मशहूर नबी है सुभान अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनका नाम आता है। अल्लाह ने उस नबी की दुआ को नकल की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के में रहते हुए अल्लाह से दो चीज़ें मांगी, और कुर्बान जाए अल्लाह ने दो चीज़ें दी हैं रहती दुनिया तक। ये दोनों चीज़ें मक्के में रहेंगी। सुभान अल्लाह। क्या मांगी थी? अल्लाह ने फरमाया वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमीना वरज़ुक़ अहलहु मिनत तमरात। कहा अल्लाह तबारक व ताला मक्के में रहने वाले तो जितने अफराद रहेंगे, अल्लाह दो चीज़ें अता फरमाना। अल्लाह ने दो चीज़ें अता की। एक मक्के में अमन और सलामती होना। सुभान अल्लाह। मक्के में चिड़ियों को, हुदूद हरम में परिंदों को न मारा जाता है, न भगाया जाता है। वहाँ के रहने वाले चरिंदों परिंद भी सुभान अल्लाह अमन और आफियत में रहते हैं। मक्के के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दो दुआ मांगी थी, अल्लाह ने दोनों दुआ कबूल फरमाई। एक दुआ है अमन और सलामती की दुआ है। आज पूरी दुनिया का जायजा ले लें, अल्लाह ने मक्के में जो अमन और सलामती रखी है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं। सुभान अल्लाह। और दूसरी दुआ ये मांगी थी, अय अल्लाह मक्के में रहने वाला कोई भी आदमी है, कभी ये भूखमरी का शिकार नहीं होना, मक्के में कोई भूखा नहीं मरना। तारीख उठा करके देखो, दुनिया के कई इलाकों में भूखमरी आई, कहत साली आई, मक्के में रहने वाला कोई आदमी कभी भूख का शिकार नहीं हुआ। ये एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ कई नबियों के वाक़यात को और दुआओं को नकल किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दो दुआएं अल्लाह से मांगी और दोनों दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमा ली हैं। यही वजह है हमारी शरीयत, जिसको शरीयत मोहम्मदी कहते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन कहते हैं, हमारी शरीयत कहती है ग़िज़ा से बढ़ करके, दौलत से बढ़ करके। इसी तरीके से हमारी शरीयत कहती है पानी से बढ़ करके, खाना से बढ़ करके हर मखलूक को मिलना चाहिए, हर मज़ाहिब के मानने वालों को मिलना चाहिए। उनका ये हक है, वो है अमन और सलामती, वो है अमन और सलामती। अगर अमन और सलामती है ना, तो आप इबादत सही से करेंगे, बंदगी सही से करेंगे। खौफ का माहौल है, खतरे का माहौल है, न इबादत सही से हो सकती है, न बंदगी सही से हो सकती है। हमारी शरीयत ने कहा दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़ करके एक इंसान को जो बुनियादी ज़रूरत है ना, वो है
में अमन और सलामती है। यही वजह है हमारे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उठा करके देखने और खुद इस्लाम का मुताला करे। इस्लाम पूरी दुनिया से आतंक को ख़त्म करने के लिए, दहशत को ख़त्म करने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए इस्लाम दुनिया से, इस्लाम सुभान अल्लाह, ये आया और इस्लाम ने इसकी तालीम दी है। यही वजह है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर, कुर्बान जाए, खुतबा जो आपने दिया था ना हज्जतुल वदा के मौके पर, यह खुतबा पढ़ना चाहिए और पूरी दुनिया के लोगों को चाहिए अपनी जिंदगी का मंशूर बना ले, अपनी जिंदगी का दस्तूर बना ले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर, जहां लाखों का मजमा है, आप ऊंटनी पर सवार हैं, आपने खुतबा दिया। उस खुतबे में आपने क्या फरमाया? अला उखबिरुकुम बिल मोमिन, ऐ दुनिया वालों मैं तुम्हें बताऊं मोमिन किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहा जाता है? आपने फरमाया मोमिन वो है मन अमिनहु अन्नासु अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम, एक मोमिन से दूसरे मोमिन के जान और माल को तकलीफ ना पहुंचे, उसको मोमिन कहा जाता है, वो मोमिन होता है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमन नास मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही, एक मुसलमान कैसा होता है? एक मुसलमान अमन और सलामती का पैगंबर होता है। एक मुसलमान की जात से, उसके हाथ से, उसके जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ये सच्चे मुसलमान की पहचान है मेरे भाइयों। यही वजह है अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उठा करके देखें, हम उस पैगंबर की उम्मत है सुभान अल्लाह, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में रहमत का जाल बिछाया और पूरी दुनिया को आपने रहमत की दावत दी। उस पैगंबर के हम उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पैगंबर ने, मैं आपको बताऊं, एक दुनिया में बहुत फतह मक्का के नाम से याद किया जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ऊंटनी पर सूरतुल फतह की जो आयात है प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तिलावत करते हुए मक्के में दाखिल हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में जितने अमन के दावे इस्लाम है और इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमें ये समझ नसीब फरमाए। मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में दाखिल हो रहे हैं। 10,000 सहाबे किराम आपके साथ है सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का को फतह कर रहे हैं और ऊंटनी पर आप सवार हैं, सर झुकाए हुए हैं और सूरतुल फतह की आयात तिलावत करते हुए मक्के में आपका दाखिला हुआ, जानते हैं। और आप ऐलान फरमा रहे हैं, मन दखला दार अबू सुफियान फहुवा आमिन, मन अगलका बाबहु फहुवा आमिन। आप फरमा रहे, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमन है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए अमन है, जो काबा में दाखिल हो जाए उसके लिए अमन है, जो हकीम इब्ने हिजाम के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमन है। वो मन अलकस्सला फहुवा आमिन, जो हथियार डाल दे कहा, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमन है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने खाने काबा का तवाफ किया, 2 रकात नमाज आपने पढ़ी, हजर असवद का आपने बोसा दिया, उसके बाद आप उनके ऊपर सवार हुए। सामने सारे कुफ्फार, ये वो कुफ्फार थे सुभान अल्लाह जिन्होंने 21 साल तक लगातार प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अजियतें पहुंचाई, तकलीफें पहुंचाई, मुसीबतें पहुंचाई, आपके असहाब को मारा, आपको मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया। सारे के सारे सामने खड़े हुए हैं, सबकी गर्दनें झुकी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनको एक सवाल किया, कहा मक्के वाले बताओ, आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ, क्या बर्ताव करने वाला हूँ? मक्के वालों ने क्या जवाब दिया? कहा आप करीम करीम हैं, आप करीम करीम हैं। कहा अरे पैगंबर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, हमने आपको हमेशा
मुसलमान हैं जिन्होंने आपको जिंदगी भर सताया है, आप अलैहिस्सलाम ने सबको ऐलान किया ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तलक़ा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ तुम सब के सबको मैं माफ करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने माफी का ऐलान कर दिया, कहा मैं वही जुमला कहूंगा जो एक मौके पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से जिन्होंने कुएं में डाल दिया था, यूसुफ ने सारे भाइयों को माफ कर दिया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जुमला कहा जाओ तुम सब के सबको मैंने माफ कर दिया, तुम सब आजाद हो। सुभान अल्लाह। जानते हैं यहाँ एक फतेह वाली बात मैं आपको बताऊं, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम साद बिन उबादा आता है, उनके हाथ में झंडा था, उन्होंने मारे जोश में कहा अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज खून बहाने का दिन है, आज इंतकाम लिया जाएगा। ऐ मक्के वालों, जैसे तुमने हमें सताया था ना, आज हम बदला लेंगे। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी इस्लाम ने उनके हाथ से झंडा लिया, एक दूसरे सहाबी को दिया और नबी ने कहा अल यौमा यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं है, इंतकाम का दिन नहीं है, खून बहाने का दिन है, आज माफी का दिन है, आज रहमो करम का दिन है। सुभान अल्लाह। याद रखो इतनी बड़ी फतह हुई, पूरा मक्का फतह हुआ। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में खून का एक कतरा नहीं बहाया। और ऐ दुनिया वालों, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ, इस्लाम को आतंक से जोड़ने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दहशतगर्द कहने वालों, मुसलमानों का रिश्ता आतंक से जोड़ने वालों, कभी तुमने तारीख उठा करके देखी है? तुम अपनी इतिहास पढ़ो, तुमने मुसलमानों के साथ क्या किया है, तुमने इस्लाम के साथ क्या किया है। ये हुस्न का मामला, ये हुस्न सलूक का मामला, ये अफू दरगुजर का मामला, ये माफी का मामला, ये रहम का मामला क्या तुमने कभी किया है? मैं इंशाअल्लाह एक दो मिसाल दूंगा और इनकी तारीख में देखो, इनका इतिहास देखो और हमारे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखो। मैं आपको बताऊं, उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब का दौर आया रज़ी अल्लाह ताला हो। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को फतह किया। उमर इब्ने खत्ताब ने ऐलान कर दिया, ऐलान किया, कहा मस्जिद अक्सा फतह हो गई है, बैतुल मक़दिस फतह है, आज किसी ईसाई का खून नहीं बहाया जाएगा। उसके बाद इन जालिमों ने प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं, जंग में नबी के अखलाक कैसे थे, आपने जंगों में क्या तालीम दी है, दुश्मनों के साथ आपने कैसे रहमो करम का मामला किया, ये सीरत का एक बाब है और एक पहलू है, इसको पढ़ने की और समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया, इन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया, मस्जिद अक्सा को फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान कर दिया था, कहा आज फतह का दिन है, मस्जिद अक्सा में, फलस्तीन में खून का एक कतरा नहीं बहेगा। ये तमाम बातें मैंने इस्लाम के हवाले से की हैं और इन्हीं ईसाइयों ने जब अल्लाह की कसम है फलस्तीन पर इनका कब्जा हुआ है, इन्होंने फतह किया है, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया है और मुसलमानों के साथ जो बर्ताव किया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हर तरफ लाशों को बिछा दिया गया था, जितने गड़े थे सब मुसलमानों के सरों से और मुसलमानों के पैरों से सारे गड़े भर गए थे। और मैं आपको बताऊं, किसी को जिंदा आग में डाला गया, जला दिया गया और मुसलमान औरतों के साथ जो इस्मत दरी के वाकयात है, अल्लाह की कसम है बयान नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब फलस्तीन को फतह किया, ईसाइयों का कमांडर था ना, वो बीमार हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद उस कमांडर के पास फल लेकर के जाते, ग़िज़ा लेकर के जाते, तीमारदारी करते, उसके बराबर खैरियत दरियाफ्त करते थे। मैं यहाँ एक पैगाम देना चाहूंगा सब लोगों के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए, सारे लोगों के लिए, इस्लाम ये अमन पसंद है, इस्लाम ये दीन अमन है, इस्लाम ने हमेशा अमन और सलामती की बात की है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हवाले से ये पैगाम दिया है, एक बेगुनाह का कत्ल ये सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। बदकिस्मती की बात कहें, बदनसीबी की बात कहें, इस्लाम के बारे में ये तासुर दिया गया है कि
اسلام میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے ایک جان کو، ایک معصوم انسان کو جس نے قتل کیا گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ اور اخیر میں یہ پیغام دوں گا، اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے دوست اور ایک ہے دشمن۔ موقع پا کر کے دشمن کو کچل دینا، دشمن کو مسل دینا، دشمن کو ختم کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ موقع پا کر کے دشمن کو معاف کر دینا یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت نے، یہودیہ عورت نے دعوت لی، اس نے کیا کیا، گوشت میں زہر ملا دیا۔ دیکھو فساد کہاں سے ہوتا ہے، فساد کی تعلیم کون دیتا ہے، شر و فساد کہاں سے ہوتا ہے۔ اس یہودیہ عورت نے کیا کیا، ایک آپ علیہ السلام کی دعوت لی اور دعوت میں کیا کیا، گوشت میں زہر ملا دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لے کر کے دعوت کھانے کے لیے گئے۔ ابھی آپ نے جیسے ایک لقمہ ڈالا تھا نا، ایک لقمہ جیسے آپ نے ڈالا، جبریل امین آسمان سے آگے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، آپ مت کھائیے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، فوراً اس کو قے کر دیا اور آپ نے منہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام کو خبر لگی، آپ علیہ السلام نے اس یہودی عورت سے پوچھا تو نے کام کیوں کیا؟ اس نے کہا میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے آپ کو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا اس عورت کو بدلے میں مار دیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، کہا اللہ نے میری جان بچا لی ہے، اس کے شر سے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، لہذا جاؤ میں اسے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ دشمن پر قابو پانے کے بعد بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ میں نے جس تناظر میں بات کی ہے، پچھلے دنوں جو پہلگام کشمیر کا جو خونی واقعہ ہوا، 28 لوگوں کی جانیں گئی، سبحان اللہ، اس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ یہاں پر میں ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو اصل میں 28 لوگوں کی جانیں گئی، اس واقعے کو ہمیں دکھ کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے، اس واقعے کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑا گیا ہے اور اسلام کو نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ حملہ کرنے والوں نے اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہاں پر صرف اتنا ایک پیغام دینا چاہیں گے، آپ سبھی لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارا پیغام ہے میرے بھائیوں کہ اس واقعے کی صحیح طریقے سے جانچ کرائی جائے۔ اللہ کی قسم ہے جس دن صحیح طریقے سے جانچ ہوگی پوری دنیا کو پتا چل جائے گا اس واقعے میں کوئی بھی سچا مسلمان شامل نہیں تھا۔ ایک سچا مسلمان کبھی بھی معصوم لوگوں کی جانیں نہیں لے سکتا ہے، معصوم لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں دوسری بات یہ ہے، جن لوگوں نے اس خونی واقعے کو انجام دیا ہے، اس واردات کو انجام دیا ہے، 28 لوگوں کی جانیں گئی ہیں میرے بھائیوں۔ میں یہاں پر ہمارے اپنی جمعیت اہل حدیث شاہپور بلکہ ضلعی جمعیت کہہ لے، ان تمام کی جانب سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ہماری یہ مانگ ہے ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے اور اس واقعے کی ہماری جمعیت یہاں نہیں مرکزی جمعیت سے ہم نے اس واقعے کی کنڈم کی ہے، مذمت کی ہے اور ہم نے باقاعدہ یہ پیغام آج آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس کی صحیح طریقے سے جانچ ہونی چاہیے اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو برابر سزا دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ ہماری یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے